زندگی میں یہ موتی پروتے جاؤ، زندگی لاجواب ہو جائے گی۔ یہ موتی پروتے جائیں اور سفر آگے بڑھاتے جائیں۔ ہاں ہاں، زندگی بہترین بے مثال ہو جائے گی، ایسی لاجواب، ایسی بے مثال۔ ایک خاندان میرے پاس آیا، پتہ نہیں کہاں نکل گیا میں بات کرتے۔ ایک خاندان آیا، بڑی دولت، دکانیں، مارکیٹیں، زمینیں، بینک، باہر کمانے، باہر سے مال ڈالروں کی شکل میں، فلاں کی شکل میں۔ زندگی تنگ تھی، بڑے پریشان تھے۔ میرے خیال میں جو چند خاندان میں نے پریشان دیکھے ہیں، ان پریشان خاندانوں میں یہ خاندان بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت پریشان خاندان۔ اب یقین جانیے، میں اصل چیز تشخیص ہوتی ہے، کیس کو پرکھنا ہے۔ میں اپنے علم کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میں اس کو سوچتا رہا کہ یا اللہ مجھ پہ یہ خیر کھول دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ قارورہ دکھاتے تھے، حکیموں کے پاس پیشاب لے کے آتے تھے شیشے کے برتن میں، شیشے کی بوتل میں، دور سے دکھاتے تھے اور وہ پیشاب دیکھ کے بیماری کو سمجھ لیتے تھے، صبح کا پہلا پیشاب۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں پیشاب میں نے دیکھا پر بیماری سمجھ نہ آئی، پھر میں نے اللہ کا نام، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، جیسے ابھی حضرت علی کی دعا سنی، حضرت علی اللہ کی طرف کتنا متوجہ تھے، تو کہا میں نے پیشاب میں ایک شکل بنی ہوئی دیکھا مور ہے، اس نے منہ میں سانپ لیا ہوا ہے، مور ہے، اس نے منہ پہ سانپ لیا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا تو نے مور کا گوشت کھایا ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ کہنے لگا اس نے تازہ تازہ سانپ کھایا تھا، اس کا زہر ہے۔ اچھا مور کی بات بتاؤں، ہمارے ہاں حویلی میں 8 مور ہیں، پر مرا ہوا سانپ نہیں کھاتے۔ کئی دفعہ سانپ مار کے ان کے سامنے ڈالا ہے، وہ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں اپنی مار کے کھائیں گے۔ ہاں باغ ہے، حویلی ہے، گھر ہے فقیر کا، سانپ وغیرہ نکلتے رہتے ہیں، مرا ہوا سانپ نہیں کھاتے۔ کہا کلام الہی کی برکت سے بوتل کے اندر میں نے عکس دیکھا، اور عکس دیکھا تو سانپ ہے، مور ہے، اس کے منہ میں سانپ ہے، اور کہا کہ پھر میں نے سانپ کے زہر کا جب علاج کیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ آج تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ تشخیص، ڈائگنوز۔ تو میرے پاس ایک کیس آیا، میں عرض کر رہا تھا، ان کے پاس دولت، مال، سب کچھ، پر زندگی میں مشکلات اور مسائل، پریشانیاں۔ اب میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، میں نے کہا گھر کے مجھے 3، 5، 7، 9 افراد چاہیے جن کو میں ایک وظیفہ دوں گا، میں خود بھی اللہ سے مانگوں گا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ میں چھوٹی سی دعا ہے، جو بندہ سوتے ہوئے اس کی ایک تسبیح پڑھ کے سوئے گا نا، میں کہتا ہوں چند دنوں، چند ہفتوں یا چند سالوں میں زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے خزانے آنکھوں سے دیکھے گا۔ عجب اس دعا کے اندر تاثیر ہے۔ استخارہ بھی یہ دعا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ عمل کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ سفر کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ استخارہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر کشف ہے، سینے کا کشف الصدور، کشف القبور، کشف البرا، ساری کائنات کا اس دعا کے اندر اللہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ کشف المحجوب، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے کشف الحجابوں سے پردے ہٹ گئے، کائنات کی وہ چیزیں میں نے دیکھی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس دعا کے اندر کشف المحجوب ہے، کشف محجوب ہے۔ میں نے یہ دعا بتا دی،
मैंने कहा 11 दिन पढ़ें, अल्लाह करे 11 दिन में हो जाएगा। किसी को जल्दी, किसी को 11 दिन, किसी को कुछ हफ्ते, किसी को कुछ महीने, कुछ ऐसे। 11 दिन के बाद फिर बुलाया, सबसे पूछा, कुछ नजर, कुछ महसूस, उन्हें कि कुछ नजर नहीं आया। एक ने बताया, उनके घर के एक फर्द ने, हालांकि वो जवान, उसने कहा जी मैंने देखा हमारे दरवाजे के बाहर एक बाबा जी हैं, बैठे कांप रहे हैं। मैं कभी बात आ गई सामने, आपके बड़े या आपसे किसी अल्लाह के वली की तौहीन हुई है। अब सोचें इसको। सोचते सोचते बात निकल आई। उनके गली मोहल्ले में दूर कहीं एक अल्लाह के दोस्त रहते थे, दरवेश रहते थे। उनके एक साहब थे, वो हर वक्त उनकी तौहीन, उन पे एतराज करते रहते थे। आपके मुल्क के सफीर को कोई किसी मुल्क में भेजें, आपके मुल्क के सफीर को किसी मुल्क में भेजें और उस मुल्क के सफीर को वहां मुल्क में कोई तकलीफ पहुंचे, पूरा मुल्क एहतजाज करता है कि वो सफीर नहीं था, हमारे मुल्क का नुमाइंदा था। है और जो अल्लाह के सफीर हैं और उसके हबीब के सफीर हैं। एक बाबा जी थे, उन्होंने दुकान खोली। सुबह सुबह एक फकीर आया। उस दौर में जब एक कौड़ी, एक पाई की 20 कौड़ियां आती थी, कौड़ियां नहीं होती कौड़ियां, ये करेंसी थी, सिक्के थे। क्यों कहते फूटी कौड़ी? ऐसी कौड़ी जो टूटी हुई हो। एक कौड़ी में फकीर राजी होता था और वो मांगने लगा, मुझे 1 रुपया दे। एक साहब कहने लगे, मैंने रुपए को देखा उस वक्त जब 1929-30 में मोतीलाल का बेटा जवाहर लाल आया। मोतीलाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू, काली इचकन पहनी हुई थी, शेरवानी, लाजवाब घोड़े पे बैठा हुआ था और काली टोपी पहनी हुई थी और अनारकली से गुजरा और हिंदू उसके ऊपर पैसे, रुपए, चांदी के रुपए थे, ऐसे बारिश की तरह बरसा रहे थे। कहा कि जिंदगी में पहली दफा मुट्ठी भर मेरे हाथ में वो पैसे लगे थे। मैं कहता था अल्लाह रोज नेहरू आए, रोज नेहरू आए। अनारकली में घोड़े में जा रहा था और उसके ऊपर पैसों की बारिश थी। तो क्या बात? दुकान खोली, कहा रुपया दे। उसने कहा बाबा अभी तो दुकान खोली है, रुपया मांगता है। नहीं अभी रुपया दे, 1 रुपया लूंगा, अगर नहीं देता तुझे बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, तेरी दुकान उलट दूंगा। लोग कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे उस फकीर का, मंगते का। मजमा जमा हो गया। फकीर भी अपनी बात पे डटा हुआ था, रुपया लूंगा। फकीर भी मजमे में। एक साहिब नजर आए, कशफुल महजूब, जिनकी आंखों के सामने पर्दे हटे हुए थे। कशफुल महजूब। ये जिन्नात हमें नजर नहीं आते, पर्दे हैं। जादू नजर नहीं आता, पर्दे हैं। जन्नत नजर नहीं आता, आती पर्दे हैं। और अजाबे कबर, सवाबे कबर नजर नहीं आता, पर्दे हैं। फरिश्ते नजर नहीं आते, पर्दे हैं। जिसके सामने से पर्दे हटते हैं, कायनात का सब कुछ वो आंखों से नजर आता है। एक साहिब नजर आए, दरवेश, देखा मजमा जमाए, हालात को देखा तो पता चला कि एक फकीर है, रुपए का मुतालबा कर रहा। फकीर की तरफ ऐसे नजर डाली ना, ऐसी नजर डाले, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। नजर डाली, कहा इसको दे दे, जो कह रहे हो जाएगा। अल्लाह वाले थे, उस दुकानदार ने दे दिया। फकीर गया, उन्होंने कहा हजरत ये मंगता फकीर भिखारी कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा मांगता है, और मैं सच है, मैंने इसको देखा है। अब गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा और तवज्जो से। मैंने इसको देखा है, बिल्कुल खाली बर्तन, खाली भांडा,
कुछ भी नहीं इस पे। इसके मुर्शिद को देखा है, वो भी खाली है। इसके मुर्शिद के मुर्शिद, इसके मुर्शिद के खड़े हैं इंतजार में, ये बोले और हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लगता है किसी फकीर की तौहीन हुई है, उसको तलाश करें। तलाश किया तो वो मर गया था। अब मैंने उनको एक तरीका बताया, मैंने कहा 70,000 दफा कलमा पढ़ के उस फकीर को हदिया करें। और वैसे भी एक साहब थे बाबा जी, एक बाबा जी थे, बाबा कादिर बख्श, हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब थे। वो कहते थे मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, मसला आता है, मैं 70,000 दफा कलमा पढ़ता हूं, मसला हल हो जाता है। मुश्किल परेशानी, कहा कि मेरा बेटा लाहौर में फौत हुआ, उसकी मैयत हुई और उसका वजन बहुत ज्यादा है, उनका मोटापा खानदानी है। कहा आया ना, तो कहने लगे बाबा जी बेटा भी उस वक्त 60 से ऊपर का था, बाबा जी 90 से ऊपर से गए हैं। अच्छा, कहा बाबा जी बेटा जो है बहुत वजनी है। कहा मैंने एक कलमे का निसाब और 70,000 दफा पढ़ना कैसे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ना है 100-200 दफा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 100-200 दफा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। ये 70,000 दफा कलमा पढ़ने को, इसको कहते हैं एक निसाब। ठीक है, समझ आई मेरी बात की ना? तो कहा मैंने अपने बेटे को दिल ही दिल में एक निसाब दे दिया, दिल ही दिल में बेटे को दे दिया, कलमे का निसाब दे दिया। कुछ देर के बाद ना उसको उठा के नहलाने के लिए जब रखने लगे, कहने लगे लोग, कहा मैं सुन रहा था लोगों के तबसरे, उनको पता नहीं है कि बाप ने बेटे को 70,000 कलमे का निसाब दिया, उन्हें पता नहीं है। कहा मैं खुद सुन रहा था लोगों के, कहने लगे पता नहीं आए थे उस वक्त तो एम्बुलेंस से निकाला था तो मैयत उठाई नहीं जाती थी, अब तो फूलों की तरह उठा के यूं रख रहे हैं। हाँ, एक बुजुर्ग थे, वहां लगे मेरे पास एक जवान था, उसको कश्फ होता था, अजीब व गरीब चीजें बताता था। मेरे पास एक जवान था, मुझे शक था पता नहीं अपनी तरफ से ऐसी बातें करता है। एक दफा हम बैठे खाना खा रहे थे, बात सुनने की भी है और ये मोती भी दे रहा हूं, सुनने की भी है। और यही चीज आज आप, ये एक कागज बाहर तकसीम होगा, ये कागज जरूर लेके जाइएगा। क्यों जी, है ना, तकसीम होगा एक कागज, ये आज बाहर तकसीम होगा, ये जरूर हर बंदा लेकर जाए और दूसरों तक भी पहुंचाए, हत्ता कि इसको व्हाट्सएप करके इसकी लोगों दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। इस कागज में भी ये तोहफा है जो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं बैठा खाना खा रहा था, वो जवान भी मेरे साथ बैठा खाना खा रहा था, अचानक उसका सांस फूला, रोने लगा, परेशान हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मैंने आलम बरज़ख में देखा, आलम बरज़ख में देखा, मौत के बाद की जिंदगी आलम बरज़ख में देखा, मेरी वालदा को अजाब हो रहा है, मेरी वालदा को अजाब हो रहा है। कहा कि मैंने दिल ही दिल में अपने लिए कलमे का निसाब पढ़ा हुआ था, वो निसाब कलमे का उसकी वालदा को हदिया कर दिया, वही वालदा को हदिया कर दी। कहा थोड़ी देर के बाद उसकी सांस ठीक हो गई। कहने लगे चाचा कहीं से कोई नेकी, कोई रहमत, कोई बरकत, कोई अता आई है, अम्मा का अज़ाब टल गया है। कहा इस वाकये के बाद मुझे दो फायदे हुए, एक फायदा तो कलमे के निसाब की तासीर का यकीन हो गया, दूसरा फायदा यह है कि उस जवान का कश्फ सच्चा था, उस जवान का कश्फ सच्चा था। दुनिया में कोई नाराज हो तो उसको हदिये भेजो, तोहफे भेजो, एक तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा, और आखिरत का कोई नाराज गया है तो उससे कलमे के निसाबों के हदिये दो। मैंने उनसे कहा ऐसा करो, अब बात समझ आ रही है ना मेरी बात की, कलमे का निसाब मैंने थोड़ा सा खोला है, अब आपको समझ आएगी। मैंने कहा कि उसको कलमे का निसाब दो,
सारा घर कलमा पढ़ो, उठते बैठते वजू बे वजू पढ़ सकते हो, सारा दिन पढ़ो, और उनको निसाब कलमे का दो, कम अज कम उनको 9 निसाब या 11 निसाब दो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसे हुआ, ऐसे ही हुआ। कलमे के निसाब दी, खूब निसाब दी। बाबा जी नाराज गए थे अल्लाह के वली, और हम उन्हें आम आदमी समझ बैठे थे। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुन लेना गौर से अल्लाह वालों, पर मैं जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, ऐलान जंग है, ऐलान जंग है। अल्लाह के वली से जो मुखालफतें, दुश्मनियां या उनके बारे में बुरा भला, ऐलान जंग है। और ये बताओ, जब अल्लाह किसी के साथ ऐलान जंग करता है, अल्लाह जीतता है या बंदा जीतता है? डाडा जीतता है, कौन जीतता है? अल्लाह जीत जाता है। मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। कुछ ही अरसे के बाद उनके हालात बेहतर हो गए। बीमारियां, कैंसर, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझने, नाकामी ऐसे सुलझना शुरू हो गई, सुलझना शुरू हो गई। हैरान हुए, कहने लगे क्या था? मैंने कहा एक बद्दुआ ट्रेवल कर रही थी, एक बद्दुआ पीछा कर रही थी, किसी फकीर की बद्दुआ, किसी दरवेश की बद्दुआ थी, अल्लाह के वली की बद्दुआ थी, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उसने तुम्हें छोड़ना नहीं था। अब तुम क्या किया? कलमे की तासीर और ताकत बढ़ के उस बद्दुआ का इजाला किया, और अल्लाह से उस बद्दुआ के जरिए करके अल्लाह से पनाह मांगी, और उस फकीर को हदिया दिया। उसकी बरकत यह हुई कि वो बद्दुआ तुमसे हट गई, उनकी दुआएं शुरू हो गई। यानी हदिया इतना दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया कि वो कहने लगे भाई इतना तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया। मैं ये अपने तौर पे कह रहा हूं, बात उनकी बात नहीं, ये मैं अपने तौर पे कह, तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया।